Hello Adit, am I audible to you? Yes, sir. Good afternoon. Okay, so today we are going to start chemical bonding and this is the most important chapter in the whole chemistry syllabus. ठीक है? क्योंकि Hmm. chemical bonding is the gateway for inorganic chemistry and organic chemistry. Atomic structure and periodic table empowers you to understand bonding. और एक बार bonding समझ में आ गया तो फिर inorganic chemistry and organic chemistry is your field. ठीक है? फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं होगा बट केमिकल बॉन्डिंग से इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ये दोनों जो ब्रांच है राइट दैट गिव्स यू द Hmm. गेटवे आई होप आई एम मेड इट क्लियर हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज Yes, sir. ठीक है सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉरगेट अबाउट केमिकल बॉन्डिंग कैन यू टेल मी व्हाट डज बॉन्डिंग मीन Bonding, I think it refers to uh, the connection between two atoms. नो Like, आई एम सेइंग ओनली बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग तो मैं नहीं बता रहा हूँ तो बॉन्डिंग मतलब नॉट नेसेसरी एटम bonding is basically force of attraction which keeps entities together अब वो entity it can be two person it can be two animals it can be a person and an animal it can be two particles right in general hmm. bonding means force of attraction which holds the entities together अब ये entity कुछ भी हो सकता है Okay. do you get me Yes. it can be two person or it can be two particle but when it comes to the particle we'll call it chemical bonding Okay. ठीक है particles क्या हो सकता है इट कैन बी टू एटम्स इट कैन बी टू मॉलिक्यूल्स इट कैन बी टू आयंस तो इस पार्टिकल्स के बीच अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बनता है which holds them together is known as chemical bonding right Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है so, देखो what does it say every stable molecule is a truce between atoms ठीक है truce मतलब दोस्ती or you Hmm. can say there should be some attraction between the atoms the atoms comes close they are held together तो फिर कुछ मॉलिक्यूल बनता है राइट Yes. तो ड्यूरिंग दिस क्लोजनेस जब ये पार्टिकल्स एक साथ आ जाता है तो व्हाट हैपेंस देयर ड्यूरिंग दैट प्रोसेस तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस दो चीज होता है एक होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइट फ्री स्टेट में Hmm. फ्री एटॉमिक स्टेट पे उसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है व्हेन दे कम क्लोज विद अदर्स द इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज वन पॉइंट सेकंड पॉइंट इज देयर विल बी लोअरिंग ऑफ एनर्जी ओके Okay. so there are two parameters I have talked about which changes during the bonding bonding matlab I told you force of attraction which holds the particles together and during that कमिंग क्लोज टू ईच अदर क्या होता है इलेक्ट्रॉन का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड लोअरिंग ऑफ एनर्जी होता है दिस टू थिंग्स हैपन ठीक है तो लेट अस अंडरस्टैंड केमिकल बॉन्डिंग प्रॉपर्ली पॉइंट बाय पॉइंट तो फर्स्ट पॉइंट क्या है सो यू कैन सी ए केमिकल बॉन्ड इज ए फोर्स दैट एक्ट बिटवीन टू और मोर एटम्स ठीक है सो नॉट ओनली एटम्स इट कैन बी molecules it can be ions right but Hmm. primarily we talk about atoms that is why it is written two atoms primarily we talk about atoms right to hold them together as a stable molecule okay so it is the union of two or more atoms involving redistribution of electrons among them as I told you when they come close by force of attraction so there will be redistribution of electron and there will be lowering of energy or decrease of energy okay in the Hmm. system is it clear Yes. so why there is lowering of energy because the force of attraction stabilizes the system attraction means stabilization repulsion means destabilization I hope you know that right Okay. Yes, sir. and because of the attraction system stabilize होता है अगर system stabilize हो रहा है तो energy will be lowered or energy will increase what do you think When system will be जब system stabilize होता है because of the force of lower attraction energy energy. will be lowered or energy will be increased Lower energy. energy will be lowered right now तुम बताओ Yes, sir. कैन आई से कि जितना एनर्जी लोअर होगा और जितना एनर्जी डिक्रीज होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा Yes, sir. स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन greater the Yes. stabilization
and greater the lowering of energy. Can I say that? Yes, sir. So what does it say? The decrease in energy is proportional to strength of the bond. Bond जितना strong होगा उतना energy lowering होगा. ठीक है? Yes, sir. So which concludes that atoms in the combined state or bonded state are more stable than free isolated atoms. These are the points. Have you understood? So is this true also for inert gases? Inert gas normally do not form compounds, right? Normally. Hmm. There are exceptions, but normally they do not follow compounds. They are found in free isolated state mostly. Okay. ठीक है. Now let us Yes, look sir. at the cause of chemical combination कि क्यों ये chemical bonding chemical combination हो रहा है. ठीक है. So I have told you about two parameters in the process. One is energy. So let us first talk about energy. So what does it say? It simply says that the tendency to acquire minimum energy. The tendency to acquire minimum energy. So I'll illustrate with an example. Let us take the illustration of hydrogen molecule formation. Okay, so let us see how hydrogen molecule is formed. So let us say there are two hydrogen atoms, HA and HB. I have marked them as HA and HB. So HA atom पे we have a nucleus Na and we have a electron E. एक हाइड्रोजन एटम पे तो यही होता है ना, न्यूक्लियस एंड एक इलेक्ट्रॉन होता है, Hmm. राइट. एंड बी में द Yes. न्यूक्लियस इज Nb and the electron is Eb. ठीक है, डू यू एग्री? Yes. So let's say they are going to form hydrogen molecule. So initially this rates spheres at the initial position of the hydrogen atom. Initially these are the hydrogen atoms, right? Yes. Initially these two hydrogen atoms are at infinite distance with respect to each other. Infinite distance मतलब इन दोनों के बीच कोई interaction नहीं है. They have no relation with each other. That Hmm. is why there is the infinite distance. Finite distance मतलब क्या? Finite distance मतलब they will start interacting with each other, right? Okay. So at infinite distance they do not have any interaction with each other. अगर दोनों के बीच कोई interaction नहीं है तो ये जो system है comprising these two atoms, इसका कोई potential energy नहीं होगा. Potential energy will be zero. Without Hmm. interaction there will be no potential energy, right? Yes, sir. ठीक है. तो यहाँ पे what we have done, we have plotted potential energy versus separation distance between these two atoms. Y axis पे potential energy of system plot किया गया है against the separation energy between these two hydrogen atoms. ठीक है. So let's say Hmm. at this point, which is the infinite distance, this is zero distance, this is infinite distance. So infinite distance पे potential energy zero है. Can you see that? Yes. Because they have no interaction. Now let us bring them closer. So if you bring them closer, at certain distance क्या होगा? They will start interacting with each other. So let's say ये जो yellow है, that is the first position of interaction. यहाँ से this is the distance जहाँ से they start interacting. Can you follow me? Hmm. Yes, sir. So let's say यहाँ से finite distance start हो रहा है, right? And when they are Hmm. at finite distance, what are the interactions which will take place here? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिमिलर चार्जेस के बीच रिपल्शन होता है, ऑपोजिट चार्जेस के बीच अट्रैक्शन होता है, राइट? तो यहाँ पे Hmm. न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच ए मतलब अट्रैक्शन हो रहा है, दो न्यूक्लियस के बीच रिपल्शन आर. ठीक है. तो यू कैन सी देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिट चार्ज, रिपल्शन बिटवीन द सिमिलर चार्ज. आर मतलब रिपल्शन, ए मतलब अट्रैक्शन. लेट्स से दिस इज द फाइनाइट डिस्टेंस. फ्रॉम दिस पॉइंट फाइनाइट डिस्टेंस चालू हुआ है. तो यहाँ से क्या होगा? अट्रैक्शन विल स्टार्ट डोमिनेटिंग ओवर रिपल्शन. अट्रैक्शन, Yes, sir. राइट. तो अगर Hmm. अट्रैक्शन डोमिनेट्स ओवर रिपल्शन तो क्या होगा? The system will stabilize. Yes. The system will stabilize, so energy will keep lowering. As you can see from this point, energy is lowering. Potential energy keeps decreasing, right? Hmm. The potential energy keeps decreasing as the distance is reduced, right? But you have to understand that jitna they are coming close to each other with the reducing distance, क्या हो रहा है? Repulsion keeps increasing, attraction keeps lowering, right? देखो, Yes. let's understand this way. लेट्स से फॉर यू, तुम्हारे एक रेडियस होता है, मतलब
let's say there is a radius or boundary around Okay. your body, उसके अंदर अगर कोई आ गया then you will get uncomfortable, right? Hmm. So we have a radius of comfort जिसके अंदर if someone comes then we get defensive, we get repulsive, right? Yes. And we may push them back. Hmm. So inside that zone repulsion will dominate. So you can see that when someone is approaching you, initially the attraction dominates over repulsion. Maybe you will start interacting with each other, but if he comes too close, or when you are seeing that he is coming close, then you will start getting alert, right? Yes. चलो, तो यहाँ से फाइनाइट पॉइंट से जब डिस्टेंस, सेपरेशन डिस्टेंस कम होते जा रहा है, तो रिपल्शन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, अट्रैक्शन विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. बट जब तक अट्रैक्शन रिपल्शन से ज्यादा होगा, द एनर्जी of the system or the potential energy of the system will keeps lowering, right? And let's say at this distance, can you see this distance? At this is the separation distance जहाँ पे attraction and repulsion ये दोनों का magnitude same हो रहा है. Do you see this? Yes. You should understand. Attraction initially dominates over repulsion, but क्या हो रहा है? As the r, which is the separation distance, this is decreasing. The repulsion is increasing, attraction is decreasing. मतलब इन दोनों का difference कम होता जाएगा, right? And at certain Hmm. distance ये दोनों का magnitude same हो जाएगा. And this is that distance. तो ये separation distance पे can I say energy will be minimum. इसके बाद Yes. अगर तुम और भी सेपरेशन डिस्टेंस कम करोगे, इफ यू ब्रिंग देम मोर क्लोजर, तो रिपल्शन बहुत ज्यादा डोमिनेट करेगा, राइट? So it will be unstable then. And it will become unstable, the energy will rise sharply, as you can see. Okay. After this point, if you bring them more closer, you can see that this rising curve, right? Hmm. ठीक है, so this is like a potential well. This plot is like a potential well, right? There is a declining curvature and then there is a rising curvature. और ये दोनों जहाँ पे meet कर रहा है, वहाँ पे what do you see? That is the separation distance where the energy of the system is minimum. Can I say that? Yes, sir. So can I say that ये जो दो atom है, they will form bond at this separation distance where they will acquire minimum energy. Yes. So this should be the bond length. ये जो separation distance है, that will be called bond length, right? R naught. Okay. This is the bond length where they will form the bond, they will form the molecule. क्योंकि at this distance पूरा system को minimum energy मिलेगा, मतलब maximum stability मिलेगा, right? Yes. So you can see bond length is the internuclear separation at which potential energy is minimum, the most stable distance between two bonded nuclei. I hope it is clear. Yes, sir. एंड व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? बॉन्ड एनर्जी देखो, तो ये फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, जीरो से मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस से बॉन्डिंग डिस्टेंस पे आने तक जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, दिस दिस डेप्थ ऑफ द मिनिमम, दैट शुड बी द एनर्जी रिलीज्ड, Hmm. है ना? तो ये जो एनर्जी Yes. रिलीज हुआ है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी. यूजुअली कोई एनर्जी टर्म, मतलब कितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, रिलीज होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस, राइट? क्वांटिटी Okay. पे डिपेंड होता है. तो यूजुअली द स्टैंडर्ड वे ऑफ डिफाइनिंग इज डिफाइन द क्वांटिटी एज 1 मोल. ठीक है, तो बॉन्ड Okay. एनर्जी कैसे डिफाइन होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ ए पर्टिकुलर बॉन्ड इज फॉर्म्ड, राइट? दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी. मतलब 1 मोल कोई पर्टिकुलर बॉन्ड फॉर्म होने में जितना एनर्जी रिलीज होगा, दैट विल बी कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी. तो वो बॉन्ड तोड़ने में उतना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगा. तो बॉन्ड एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बस दोनों का साइन ऑपोजिट है. फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. कैन यू टेल मी? एक बॉन्ड फॉर्म होना, Formation. दैट इज If it is एक्सोथर्मिक और released, एंडोथर्मिक. हम्म, since energy is released, it will be exothermic. राइट. तो फिर बॉन्ड तोड़ना, इट शुड बी एंडोथर्मिक. बस ये नेचर ऑफ प्रोसेस इज ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम होता है. एक बॉन्ड फॉर्म होने में जितना एनर्जी रिलीज होता है, बॉन्ड तोड़ने में उतना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होता है. आई होप दिस इज क्लियर.
We have learned So about bond energy, bond. bond length, but at least I have understood that ये bond formation कहाँ पे हो रहा है, combine कहाँ पे हो रहा है, where the energy Hmm. is minimum. So one reason of chemical combination is the tendency of the atoms to acquire minimum energy. Is it clear? Yes, sir. चलो, दूसरा पैरामीटर क्या था? रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? Yes. तो सिंपल सा स्टोरी क्या है? स्टोरी है कि इनर्ट गैस जो होता है, दे आर फाउंड इन आइसोलेटेड एटॉमिक फ्री एटॉमिक स्टेट, राइट? वेयर द अदर एलिमेंट्स आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स और मॉलिक्यूलर स्टेट, राइट? एलिमेंटल स्टेट और कंपाउंड स्टेट, बट इन कंबाइंड स्टेट. डू यू एग्री? Yes. तो व्हेन द साइंटिस्ट स्टार्टेड लुकिंग एट द इनर्ट गैस, मतलब क्या है? इनर्ट गैस आर हैप्पी एलोन, दे आर हैप्पी एलोन, और आई कैन से दे आर स्टेबल इन फ्री स्टेट. ठीक है? Hmm. When the scientists started looking for the reason, they found that ये हर एक इनर्ट गैस का जो वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हीलियम जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? सो दे हैव कनेक्टेड दिस विद द स्टेबिलिटी, कि दैट मींस अगर वैलेंस शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो द एलिमेंट्स विल बी हाईली स्टेबल एंड दे विल बी इनर्ट, दे विल नॉट कंबाइन विद एनी अदर एलिमेंट, राइट? Okay. ठीक है? And Hmm. then they look at the other elements and they found they do not have 8 electrons in the valence shell like inert gas. So the logic behind is, तो फिर other elements what they want? The other elements want to achieve 8 electrons like inert gas in their valence shell. उसको भी Yes. achieve करना है valence shell पे 8 electrons like inert gas so that they can get stable like inert gas. Yes or no? Hmm. Yes. So they want to achieve this configuration in the valence shell, stable electronic configuration, ns to np6, right? Like nearest noble gas, and they can achieve this configuration by few routes. पहला रूट क्या हो सकता है? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो एटम पे ऑक्टेट अचीव हो सकता है, एंड बाय दिस रूट दे कैन फॉर्म आयनिक बॉन्ड. ठीक है? दूसरा रूट क्या है? बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स टू एटम्स कैन अचीव ऑक्टेट, एंड बाय दिस रूट दे कैन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है? Hmm. एंड तीसरा रूट क्या है? तीसरा रूट इज, अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन रीच है दूसरा एटम पे सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन से, तो फिर क्या हो सकता है? तो वन एटम कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू अदर्स, तो उससे दोनों का ऑक्टेट अचीव हो जाता है. ठीक है? तो इट कम्स टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है? सो द एलिमेंट्स कैन अचीव देयर ऑक्टेट इन द आउटर मोस्ट शेल बाय दिस थ्री डिफरेंट रूट्स, एंड ये तीनों रूट पे तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता है. वन इज आयनिक बॉन्ड, अदर इज कोवैलेंट बॉन्ड, एंड देन देयर इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इज इट क्लियर? So what is the difference between a coordinate bond and We'll a come to that. covalent We'll bond? gradually come into that. Okay. So just Okay. I have just mentioned the roots, and then we will discuss all those things. So let us classify the bonds. तो बेसिक क्लासिफिकेशन होता है प्राइमरी बॉन्ड्स एंड सेकेंडरी बॉन्ड्स. प्राइमरी बॉन्ड्स मतलब जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स होते हैं, एटम्स के बीच जब बॉन्ड होता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी बॉन्ड. क्योंकि अगर प्राइमरी बॉन्ड होगा देन यू विल गेट द मॉलिक्यूल्स, फिर मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्ड बन सकते हैं, राइट? Hmm. तो पहले मॉलिक्यूल्स बनना पड़ेगा. सेकेंडरी बॉन्ड मतलब द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो सेकेंडरी बॉन्ड के लिए तो पहले तो मॉलिक्यूल्स बनना चाहिए. तो दैट इज व्हाई Hmm. मॉलिक्यूल्स बनने के लिए जो बॉन्ड होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी बॉन्ड. उसमें क्या आता है? आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड. दिस आर प्राइमरी बॉन्ड्स, इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स. ठीक है? अब जब मॉलिक्यूल्स Yes. बन जाता है तो मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी बॉन्ड्स. van der Waals force, non van der Waals force, and hydrogen bond. We are going to discuss all these things later. ठीक है? बस अभी Okay. तो मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ. तो नॉर्मली क्या होना चाहिए? प्राइमरी बॉन्ड शुड बी द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स. उसका बॉन्ड एनर्जी 200 टू 400 किलोजूल पर मोल होना चाहिए. मतलब 1 मोल ऑफ प्राइमरी बॉन्ड बनने के लिए 200 टू 400 किलोजूल एनर्जी रिलीज होता है. वेयर सेकेंडरी बॉन्ड्स आर वीकर बॉन्ड्स, इसमें बॉन्ड एनर्जी होता है 2 टू 40 किलोजूल पर मोल. इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है. So let us understand the atoms involved in different types of bonding. तो आई थिंक तुम्हें पता होगा कि एक मेटल एटम एक नॉन मेटल एटम के बीच कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड बनता है? एक मेटल एंड एक नॉन But मेटल के बीच
Ionic bond. आयनिक बॉन्ड, ठीक है। Electrovalent. दो नॉन मेटल एटम के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? Covalent. कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर दोनों ही मेटल है तो दे विल बी मेटेलिक Metallic. बॉन्ड, ठीक है। अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिच एटम है और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर एटम, एक इलेक्ट्रॉन रिच एटम है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है। तो इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा दैट कैन बी कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड व्हेन इट कम्स, ठीक है। Okay. और देयर आर टाइम्स जब हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, समटाइम्स क्लोरीन का बॉन्ड बन सकता है अंडर suitable conditions, then they can be called hydrogen bond, ठीक है। So these are the different types Okay. of bond. I have just mentioned कि which two atoms can form which types of bond, and we'll start with the ionic bond which is also called electrovalent bond, ठीक है। Yes, sir. तो what do you know कि ionic bond is formed between a metal atom and a non-metal atom. So let us take sodium and chlorine, right? Yes. तो तुम बताओ, तो सोडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है 281, ये तो मतलब क्लास 10 वाला कॉन्फ़िगरेशन, बट फॉर सिंप्लिसिटी वी आर फॉर नाउ डूइंग दिस। तो सोडियम का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है फॉर नाउ? One. 1। तो अगर इसको ऑक्टेट अचीव करना है तो फिर क्या करना है? Lose one electron. It has to lose this electron, right? So if it gives up the electron, it will become Na plus, and ये वैलेंस शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा, right? So you can see metal atom Yes. loses the electron to achieve octet. अब क्लोरीन, उसका एटॉमिक नंबर 17 है और उसका वैलेंस शेल पे देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको क्या करना है ऑक्टेट अचीव करने के लिए? Gain one electron. It has to gain one electron in the outermost shell, right? So if it gains the electron, it will become Cl minus और यहाँ पे ऑक्टेट अचीव होगा, ठीक है। बट ये सोडियम एंड क्लोरीन दे आर नॉट डूइंग इट सेपरेटली। सोडियम जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, राइट? Hmm. You can see this is the valence electron of sodium. You can show the valence electrons of the atom by dot or cross. तो सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास देयर आर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय द रेड डॉट्स। तो क्या हो रहा है? तो सोडियम जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है दैट इज एक्सेप्टेड बाय क्लोरीन। सो टेक्निकली यू कैन से देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, राइट? Yes, तो sir. सोडियम से क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? You are getting two opposite ions, Na plus and Cl minus, and opposite ions के बीच क्या होगा? Electrostatic force of attraction काम करेगा, and this electrostatic force of attraction between the opposite ions here is known as ionic bond or electrovalent bond. Is it clear? Yes, sir. चलो, तो यहाँ पे because of the electrostatic force of attraction we are getting ionic compound. तो ionic compound मुझे solid form में मिलता है, so usually we call them ionic crystals, right? तो bond, Okay. nature of bond is ionic bond or electrovalent bond, but you will get a compound in solid state which you can call ionic crystal or ionic solid, ठीक है। so far is there Okay. any? No, sir. चलो, you can see here, so let's say if I take magnesium, magnesium is a metal, nitrogen is a non-metal. तो magnesium and nitrogen के बीच कैसा बॉन्ड होना चाहिए? एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, तो कैसा बॉन्ड होना चाहिए? Metal and non-metal forms ionic bond. आयनिक बॉन्ड होना चाहिए। तो हाउ डू आई फॉर्म द कंपाउंड हियर? तो पहले तो देखो, मैग्नीशियम, उसका इसके पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसको इट हैज टू गिव अप टू इलेक्ट्रॉन्स टू गेट ऑक्टेट। तो magnesium Yes. will give up 2 electrons, will become magnesium 2 plus, whereas nitrogen का valence shell पे there are 3 electrons, so it has to gain 3 electrons, right? इसको 3 Yes. इलेक्ट्रॉन गेन करना है to achieve octet, ठीक है। बट एक चीज यू नीड टू अंडरस्टैंड, मेटल से नॉन मेटल पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेटल से जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, नॉन मेटल must accept that electrons. Can I say the number of electrons lost by the metal should be equal to number of electrons gained by non-metal? Yes. That should be the rule. Total number Hmm. of electron loss must be equal to the number of electrons gained. But what we are seeing here,
कि मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और एक नॉन मेटल एटम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये तो सेम नहीं है. सो हाउ कैन आई इक्वलाइज देम? Balance the chemical equation. So I'll take the LCM, right? Hmm. I'll take the LCM. तो 2 and 3 का LCM क्या है? 6. Yes. तो द नंबर ऑफ, तो इसका मतलब there should be loss of 6 electrons and loss gain of 6 electrons. Then the transfer will be equal, right? Yes. तो अगर मैग्नीशियम को 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना है तो there should be 3 magnesium atom losing total 6 electrons and you will get 3 magnesium 2 plus ions, right? Okay. है ना? और अगर नाइट्रोजन को 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो there should be 2 nitrogen atoms gaining 3 electrons each, so total electrons gained will be 6 electrons and you will get 2 N3 minus. Is it clear? Yes, sir. अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस से दिखाता हूँ तो ये 3 मैग्नीशियम व्हिच आर पार्टिसिपेटिंग, हर एक के पास दो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीन डॉट्स, और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम पार्टिसिपेटिंग ईच हैविंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेड बाय रेड क्रॉस. ठीक है? So you can see this electron is this nitrogen is accepting 3 electrons, right? And this nitrogen is also accepting 3 electrons, and by this transfer we are getting 3 magnesium 2 plus and 2 N3 minus, and ये opposite ions के बीच force of attraction से ये compound और crystal generate हो. Is it clear? Yes. So I hope this is clear. That is how things are happening. Yes. ठीक है. So I believe so. If I give you some metal and non-metal, you can form the compound this way. You can find the formula Yes. as well. Yes, sir. So let us know the points of ionic or electrovalent bond. तो क्या होता है? What are the steps here? तो पहला स्टेप तो ये होता है, there is a transfer of electron from metal to non-metal, right? Hmm. There is the first step. दूसरा तो, और ये ट्रांसफर से क्या होता है? Opposite ions are generated, cations and anions are generated, and फिर ये opposite ions के बीच, these opposite ions are bound by strong electrostatic force of attraction. That is how ionic crystal is formed. First step, electron transfer, and then opposite ions are generated, and then by electrostatic force of attraction these opposite ions are bound together to give you Yes, the sir. ionic crystal. ठीक है? Yes, sir. तो आयनिक बॉन्ड्स आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. तो मेटल नॉन मेटल जब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन पे पार्टिसिपेट करता है तो द वैलेंसी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी. इज इट क्लियर? Yes, sir. सो हाउ Yes. डू आई डिफाइन इलेक्ट्रोवैलेंसी? कैन यू टेल मी हाउ कैन आई डिफाइन Uh, इलेक्ट्रोवैलेंसी? देखो मेटल का इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है? सिंपली एक मेटल एटम जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है टू अचीव ऑक्टेट, that should be its electrovalency. For non-metal, it should be the number of electrons gained to achieve octet. That should be the electrovalency of the non-metal. yes, sir. ठीक है? लेकिन I am telling metals का electrovalency is basically the number of electrons lost by the metal atom to achieve octet. For non-metal, it should be the number of electrons gained to achieve the octet. ठीक है? Yes, sir. तो इफ यू लुक एट द पीरियोडिक टेबल, अगर तुम उसमें जो सारे ग्रुप्स होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स देखते हो, तो ग्रुप 1 2 13 14 15 16 17 दिस आर द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ग्रुप. ठीक है? तो Hmm. आई होप यू नो Yes. पीरियोडिक टेबल तो हो चुका है. तो ग्रुप 1 टू Yes. 13 में मेटल्स होता है, 14 टू 17 नॉन मेटल्स होता है, राइट? Hmm. तो मुझे ये सारे ग्रुप्स का इलेक्ट्रोवैलेंसी निकालना है. तो व्हाट डू यू सी? तो दिस आर द ग्रुप नंबर. तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ग्रुप 1 पे देयर इज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 में देयर आर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 13 में 3 होता है, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट? Yes, sir. अब देखो मेटल्स के पास 1 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है. तो अगर ये जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको अगर ऑक्टेट अचीव करना है, so either they have to gain 5 electrons or they have to lose 3 electrons. Which one is easier? Losing 3 electrons. राइट. सो मेटल्स विल लूज इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है? तो फिर ये ग्रुप 1 में जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इट विल लूज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी विल बी 1. ग्रुप 2 में इलेक्ट्रोवैलेंसी विल बी 2, ग्रुप 3 में इलेक्ट्रोवैलेंसी शुड बी 3. So for metals the electrovalency should be the number of valence electrons present in it, right? Okay. समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Now when it comes to non-metals, so non-metals usually
गेन इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव ऑक्टेट। तो ग्रुप 14 में ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना है ऑक्टेट के लिए? 4. 4। तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी विल बी 4। ग्रुप 15 में देयर आर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना है? 8 minus 5 equal to 3. राइट। तो नॉन मेटल्स के लिए इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगा? 8 माइनस वी। वी इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट। Hmm. समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होता है, डी ब्लॉक में यूजुअली डी ब्लॉक एलिमेंट शोज वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे तुम्हें पता है कि आयरन Fe+2 में भी जा सकता है, +3 में भी जा सकता है। मतलब इधर Hmm. आइदर इट कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स और इट कैन लूज 3 इलेक्ट्रॉन। जैसे ये कॉपर +1 पे जा सकता है, +2 पे जा सकता है। ठीक है। तो जो डी ब्लॉक Yes. एलिमेंट्स है दे कैन शो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी, राइट? सो डी ब्लॉक इज नॉट आवर कंसर्न राइट नाउ। Okay. एनी डाउट सो फार? No, sir. ठीक। तो let us understand the key points of ionic bond or ionic crystal. तो first of all, ionic bond मतलब electrostatic force of attraction. ठीक है। So let us take a positive charge and let's say this green sphere, this green line is the electric field of the positive charge. मतलब beyond that line it will have no influence over any other charge, right? Hmm. पॉजिटिव चार्ज का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा बियॉन्ड द बाउंड्री, राइट? बट इनसाइड Yes, द sir. बाउंड्री इट कैन अट्रैक्ट एनी नेगेटिव चार्ज फ्रॉम एनी डायरेक्शन। Yes, sir. ठीक है। कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन पे ही सिर्फ काम करेगा, बाकी डायरेक्शन पे काम नहीं करेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। No. तो इसका मतलब क्या है? द आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस एट सेम डिस्टेंस। ठीक है। Okay. तो फर्स्ट पॉइंट Understood. इज आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। इट डज नॉट हैव एनी प्रेफरेंस फॉर स्पेसिफिक डायरेक्शन, राइट? it can operate in all directions equally. That is the first point. So ionic bond is non-directional in nature. I hope you understood, right? Yes. Now when you, let's say NaCl, let's say NaCl is an ionic crystal, right? तुम्हें solid state पे मिलता है। So what is the difference between a ionic crystal and a powder? तुम जब when you जब तुम पाउडर हाथ में लेते हो एंड उसको तुम रैप करते हो, so what you will find? It will feel slippery, right? Yes. Whereas if you take NaCl or any ionic crystal in your hand and rub, तो तुम्हें एक sharpness feel होगा, right? You Yes. will feel a sharpness over your hand, over your skin. ठीक है। वो Hmm. sharpness क्यों feel होता है? Because there are edges. ठीक है। Okay. Why there will be edge? Because there are defined boundaries. अगर defined boundary होगा तो edge होगा। ठीक है। defined boundary क्यों है? Because ये ionic crystal पे जो cations and anions होता है उसका एक regular periodic 3D arrangement होता है। That is why there is a defined boundary. Defined boundary होता है because of the regular arrangement of the constituent particles. ठीक है। Got it. अगर अगर सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसको लेट अस कंसीडर एज ए स्फीयर। वो पार्टिकल्स को हम स्फीयर मान लेते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑल द स्फीयर्स टू शो द अरेंजमेंट। तो हम क्या करते हैं, ये स्फीयर्स का जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट को हम एज ए पार्टिकल प्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। कैन यू सी दिस? The Yes. center point of the sphere is considered as the representative of the particle. And what do you see? These particles are represented in a regular and periodic manner. That regular means I can see there is a regularity. There is not irregular behavior. Why periodic? Because after a certain interval, the same particle is getting repeated. That is called periodicity. Do you get me? Yes. तो Yes. एक रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट के लिए क्या होता है? एक डिफाइंड बाउंड्री होता है। ये जो Hmm. अरेंजमेंट मैंने तो 2D पे दिखाया है, बट इट शुड बी अ 3D अरेंजमेंट। ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट ये आयनिक क्रिस्टल फॉर्म होता है। तो आयनिक क्रिस्टल मतलब there will be large number of opposite ions which have gathered together because of strong electrostatic force of attraction or strong force of attraction. तो क्रिस्टल सॉलिड तब होता है when there are large number of constituent particles held together by strong electrostatic force of attraction. Is it clear to you? Otherwise, it will be a powder.
अगर यहाँ पे कोई रेगुलरिटी पीरियोडिसिटी नहीं है, अब ये रेगुलरिटी पीरियोडिसिटी होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इफ द फोर्स कैन होल्ड देम इन दोस पोजीशंस प्रॉपर्ली। ठीक है, अगर फोर्स वीक हो जाएगा तो फिर क्या होगा, देयर विल बी इरेगुलरिटी, देयर विल बी नो पीरियोडिसिटी, सम रैंडमनेस विल कम इन। Yes. आई होप इट इज क्लियर टू यू। Yes, sir. ठीक है, now let us talk about when I say NaCl what do I mean। तो NaCl का मतलब क्या ये है कि जो आयनिक क्रिस्टल होता है उसमें एक ही Na प्लस आयन है, एक ही Cl माइनस आयन है। डू यू थिंक दैट इज ट्रू? No. व्हाट डिड आई जस्ट से कि आयनिक क्रिस्टल इज बेसिकली an assembly of large number of constituent ions which are held together by strong electrostatic force of attraction। ठीक है, तो Hmm. NaCl क्रिस्टल में एक Na प्लस एक Cl माइनस नहीं होता है। there will be large number of Na plus and Cl minus held together। तो what does NaCl represent? NaCl simply represent the empirical formula of the crystal। मतलब ये क्रिस्टल में Na plus and Cl minus 1:1 रेशियो पे है। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो आयनिक कंपाउंड का कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल है H2O रिप्रेजेंट्स, H2O से क्या पता चलता है कि एक मॉलिक्यूल पे एग्जैक्टली दो हाइड्रोजन एटम एंड वन ऑक्सीजन एटम है। Hmm. Yes or no? तो Yes. मॉलिक्यूल कंसेप्ट अप्लाइज टू द कोवैलेंट कंपाउंड्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स का मॉलिक्यूल होता है व्हिच रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन इट। आयनिक कंपाउंड्स के लिए कोई मॉलिक्यूल नहीं होता है। तो यहाँ पे जो NaCl और जो भी फॉर्मूला होता है इट सिंपली इट इज ए फॉर्मूला यूनिट, ये कोई मॉलिक्यूल नहीं होता है। दिस इज सिंपली एन एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो NaCl और कोई भी आयनिक कंपाउंड के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास जैसा कुछ नहीं है। वी सिंपली रिप्रेजेंट और कॉल इट ग्राम फॉर्मूला मास। दिस इज ए फॉर्मूला यूनिट and I'll call it a gram formula mass which is equivalent to molar mass। Is it clear? Yes. चलो, so what does it say? It says that देखो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ऑपोजिट आयंस के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इन दोनों के बीच कोई प्रॉपर कनेक्शन नहीं होता है ना। Hmm. they do not have a proper connection। there is electrostatic force of attraction, that is fine, but you cannot call ionic bond a true bond because there is no proper connection, right? Okay. so what else we know that तुम periodic table किए हो कि Hmm. अगर कोई बॉन्ड पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज होता है, ठीक है, अगर इफ देयर इज दिस इज ए बॉन्ड तो इसमें क्या होगा, इसमें पोलैरिटी डेवलप होगा बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, राइट? Okay. एंड बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी आयनिक कैरेक्टर कम्स इन। तो इस कोवैलेंट बॉन्ड इज नॉट 100% कोवैलेंट बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी। अब तुम जितना Yes. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस को इंक्रीज करोगे, this positive and negative pole will increase, the partial charges will increase, that means ionic character will increase। so can I say that ionic character in a bond is proportional to the electronegativity difference? Yes. ठीक है, तो Hmm. जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इंक्रीज होगा आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा बढ़ेगा, राइट? Yes, sir. तो इफ आई से टेल मी द बाइनरी कंपाउंड मतलब दो एलिमेंट शुड बी देयर, बाइनरी कंपाउंड जिसमें आयनिक कैरेक्टर विल बी मैक्सिमम। टेल मी द बाइनरी कंपाउंड जिसमें आयनिक कैरेक्टर विल बी मैक्सिमम। सो व्हाट शुड Binary बी, character, राइट? तो the कैन one आई with से the आई हैव टू, largest राइट, सो आई हैव टू electro. टेक दोस टू एलिमेंट्स जिसमें एक में मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए तो दूसरे में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए। Yes. ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है? फ्लोरीन का, पता होगा शायद। Yes, sir. Flowiness max. फ्लोरीन हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सीजियम हैज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन दोनों के Yes, बीच sir. जो कंपाउंड होगा उसका आयनिक कैरेक्टर विल बी मैक्सिमम। दिस इज द बाइनरी कंपाउंड व्हिच हैज मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट होता है? तो लेट्स से ए एंड बी आर, नॉर्मली क्या होता है जब तुम कोई आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हो तो पहले मेटल लिखा जाता है, बाद में नॉन मेटल लिखा जाता है, राइट? Hmm. तो लेट्स से ए इज द मेटल, यहाँ पे ए मेटल है एंड बी इज द नॉन मेटल।
तो पहले इन दोनों का इलेक्ट्रोवैलेंसी निकालना है। तो लेट्स से ए का इलेक्ट्रोवैलेंसी इज x एंड बी हैज ए इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ y, ठीक है। एंड देन यू हैव टू फॉलो द क्रिस क्रॉस रूल। ए का इलेक्ट्रोवैलेंसी शुड बी द सिंपल रेशियो नंबर ऑफ बी एंड बी का जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है दैट शुड बी द सिंपल रेशियो नंबर ऑफ ए, ठीक है। Yes, sir. तो फॉर्मूला क्या होगा, ए वाई बी एक्स, दैट इज द क्रिस क्रॉस रूल। इज इट क्लियर? Yes, sir. Let me give you a problem here. The problem is, let's say A is a metal, ठीक है, ये ग्रुप 2 में है, एंड B is a non metal which is present in group 15, ठीक है। तो what should be the nature of bond? Since it will be an ionic bond. And what should be the formula? It will be A3B2. Right, so the nature of bond, it should be ionic, क्योंकि एक metal है दूसरा non metal है, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होगा, तो ए का इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ ए इज 2, इसका बी होगा, सो इट शुड बी A3B2, क्रिस क्रॉस रूल, Yes, sir. ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि जो आयनिक क्रिस्टल फॉर्मेशन का जो स्टेप्स होता है, व्हाट आर द एनर्जीज इन्वॉल्वड इन दैट प्रोसेस, ठीक है। Hmm. What are the steps during the crystal formation? What are the steps during the crystal formation? तो पहला स्टेप क्या है, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स बिकम कैटायंस, राइट। Okay. दूसरा स्टेप क्या है, नॉन मेटल गेन्स इलेक्ट्रॉन्स बिकम एनायन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का ये दो स्टेप होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल एटम, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय नॉन मेटल एटम, राइट। एंड बाय दिस टू स्टेप्स क्या होता है, ऑपोजिट आयंस बनता है, एंड देन ये ऑपोजिट आयंस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से यू गेट द आयनिक क्रिस्टल और लैटिस। सो दीस आर द 3 स्टेप्स। Yes, sir. तो बताओ, फॉर द फर्स्ट स्टेप व्हाट इज द एनर्जी टर्म इन्वॉल्व, तो व्हाट यू आर डूइंग हियर, फ्रॉम मेटल एटम द इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग रिमूव्ड, from the gaseous metal atom the electrons are getting removed, right? So what is the energy term Yes. associated here, it must be ionization energy। Yes, sir. आयनाइजेशन एनर्जी से तुम क्या करते हो, तुम यू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट From शेल ऑफ outermost shell. गैसियस एटम, ठीक है ना। Yes. तो कहना इसे, हर एक स्टेप जितना इजीली हो पाएगा और हर एक स्टेप जितना जल्दी होगा, the whole process will be more favorable for the easiness or for the favorability of every step। I did not understand this. आई एम What सेइंग did कि you say, हर sir? एक स्टेप जितना इजीली होगा तो ओवरऑल Hmm. प्रोसेस उतना इजी होगा, Yes. ठीक है। अगर स्टेप 1 इजीली होता है तो दैट विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल, अगर स्टेप 2 इजीली होता है तो दैट विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल, स्टेप 3 Yes, अगर sir. इजीली होता है दैट विल आल्सो फेवर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल, राइट। Yes, sir. तो बताओ, तो फिर ये पहला स्टेप इजीली होने के लिए IE शुड बी मिनिमम और मैक्सिमम, Minimum. मिनिमम। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स को इजीली रिमूव करना है तो जितना कम एनर्जी लगेगा उतना बेटर, Hmm. ठीक है। सो आई शुड बी मिनिमम व्हिच शुड फेवर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल, मिनिमम आई, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और एंडोथर्मिक प्रोसेस है। Remove. It is endothermic. दिस इज एंडोथर्मिक क्योंकि यू हैव टू सप्लाई एनर्जी, तो डेल एच रिप्रेजेंट्स द एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। डेल एच पॉजिटिव होने का मतलब है एंडोथर्मिक, नेगेटिव होने का मतलब है एक्सोथर्मिक, तो दिस इज एक एंडोथर्मिक और डेल एच इज प्लस IE, ठीक है। Hmm. दूसरा स्टेप में क्या है, द इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग एडेड टू द नॉन गैसियस नॉन मेटल एटम, तो यहाँ पे जो एनर्जी टर्म इन्वॉल्व है उसको क्या बोलेंगे, Electron affinity. electron affinity। Electron affinity is the term which is associated with addition of electron to the outermost shell of a gaseous atom, right? Can it also be electron gain enthalpy? Electron gain enthalpy, right? It can be also electron gain enthalpy, right? Correct. But normally हम electron affinity is more commonly used term. So first you tell me कि
addition of electron or gain of electron is usually exothermic or endothermic? When in electron affinity, energy is released, so it is exothermic. Right. So during the addition of electron, usually energy is released. So this is exothermic. And when the process is exothermic, electron affinity is positive, right? Yes, sir. ठीक है. और normally qualitatively we can say कि तुम जितना easily electron add कर सकती हो, electron affinity उतना ज्यादा होगा, right? Hmm. That is the qualitative interpretation. तो तुम बताओ ये सेकेंड स्टेप में तुम जितना इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे द इट विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल. तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होना चाहिए या मिनिमम होना चाहिए? Maximum, because if मैक्सिमम. it is तुम जितना minimum, then it इजीली is ऐड negative. करोगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उतना इजीली ऐड होगा. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे मैक्सिमम होगा. डेल एच शुड बी माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है? फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयंस आयनिक क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है. ठीक है, और यहाँ पे जो एनर्जी टर्म इन्वॉल्व है दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी व्हिच वी डोंट नो येट. ठीक है, अभी पता करना है कि लैटिस एनर्जी क्या होता है. एंड आई टोल्ड यू यूजुअली जब कोई एनर्जी टर्म हम डिफाइन करते तो उसके लिए अमाउंट भी डिफाइन करना पड़ता है क्योंकि द एनर्जी absorbed or emitted that depends on the quantity of the substance. ठीक है, and the standard quantity जो हम define करते हैं that is 1 mole. Yes or no? Okay. Yes. तो यहाँ पे for ionic crystal I cannot say 1 mole, rather I will say 1 gram formula, right? So I have to form 1 gram formula of this crystal from the constituent gaseous ions. ठीक है, तो Okay. ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जो एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज नोन एज लैटिस एनर्जी. तो 1 ग्राम फॉर्मूला आयनिक लैटिस बनाना होगा फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयंस. तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज विल बी कॉल्ड लैटिस एनर्जी. इज इट क्लियर टू यू? Yes. So it is exothermic. व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक? कैन यू टेल मी? क्योंकि यहाँ पे जो गैसियस आयंस है गैसियस स्टेट में दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. तो ये गैसियस आयन के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, राइट? व्हेन द आयंस आर इन गैसियस स्टेट तो उसके बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है. बट जब वो क्रिस्टल बना रहा है सॉलिड स्टेट में दे कम्स वेरी क्लोज. तो Mm-hmm. नाउ दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो द नाउ द आयंस आर स्टेबलाइज्ड इन Yes, sir. सॉलिड स्टेट. तो अगर स्टेबिलिटी मिल रहा है तो फिर एनर्जी शुड बी रिलीज्ड. इट मस्ट बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस. Yes. ठीक है, बट लैटिस Yes, sir. एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज. सो लैटिस एनर्जी पॉजिटिव होगा. द सेम कंसेप्ट एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो लैटिस एनर्जी फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस लैटिस एनर्जी पॉजिटिव होगा और ये डेल एच क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ लैटिस एनर्जी. इज इट क्लियर? Yes. चलो, सो व्हाट वी हैव लर्नड हियर. तो लैटिस एनर्जी क्या होना चाहिए यहाँ पे? मैक्सिमम और मिनिमम. कैन आई से कि ये क्रिस्टल जितना स्टेबल होगा ये फॉर्मेशन ऑफ लैटिस उतना ज्यादा होगा. मतलब जितना ये क्रिस्टल जितना स्टेबल होगा द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल विल बी मोर फेवर्ड. Yes. और ये जितना स्टेबल होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा. Uh, ये क्रिस्टल yes. जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा. बिकॉज मोर Mm-hmm. स्टेबिलाईजेशन मीन्स मोर लोअरिंग ऑफ एनर्जी. Yes, sir. और जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा लैटिस एनर्जी उतना ज्यादा होगा. Yes, sir. तो कहना इसे द एनर्जी टर्म. तो यहाँ पे मैक्सिमम लैटिस एनर्जी होना चाहिए फॉर द फेवरेबिलिटी ऑफ दिस प्रोसेस. Yes, sir. So I hope that you understood this energy terms, right? Yes, sir. ठीक है, चलो. और लैटिस एनर्जी का सिंबल क्या है? U. U is the symbol of lattice energy here. तो Okay. what we have learned, the lattice energy is proportional to the stability of this crystal. तो ये क्रिस्टल का स्टेबिलिटी डिपेंड होता है किस पे? It depends on the electrostatic force of attraction between the opposite ions, right? Yes. And electrostatic force of attraction किस पे डिपेंड होता है? Charge of the ions and the distance of the ions, right? तुम्हें पता है दोनों चार्ज के बीच जो force of attraction that depends on their charge, magnitude of charge and between their distance. Yes or no? Yes. So what I have to write, the lattice energy is proportional to the stability of the ionic crystal, and so it can be proportional to the Z plus Z minus. Z plus is the positive charge carried by the cation
and Z minus is the magnitude of negative charge carried by the anion. ठीक है? Okay. तो लैटिस एनर्जी और उसका मैग्नीट्यूड जो भी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू Z प्लस Z माइनस, दैट इज द आयनिक चार्ज. एंड लेट्स से नॉर्मली क्या होता है किसी भी सॉलिड्स में, वी कंसिडर दैट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर. सॉलिड स्टेट में वी कंसिडर that the constituent particles are in contact with each other. तो ionic crystal में I'll consider that the cation and anion are in contact with each other, right? Usually cation is smaller in size, anion is larger in size. So this is the cation, this is the anion, and they're in contact with each other. So their distances or internuclear distance is what? Can I say their internuclear distance is radius of cation plus radius of anion? Yes. बोल सकता हूँ कि नहीं? ये Hmm. कैटायन का न्यूक्लियस है, ये एनायन का न्यूक्लियस है, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होगा? रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन. एंड द लैटिस, इन दोनों के बीच डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना क्या होगा? कम हो जाएगा. Hmm. तो फिर लैटिस एनर्जी भी कम हो जाएगा. तो लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटर आयनिक डिस्टेंस. आई होप इट इज क्लियर. Yes, sir. क्लियर कि नहीं? Yes, sir. ये मैथमेटिकल रिलेशन है, बट क्वालिटेटिवली अगर तुम क्वालिटेटिवली देखो, so what can I write? That qualitatively ये जो लैटिस एनर्जी और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है that is proportional to charge of ion, right? But inversely Yes, sir. proportional to size of ion, that is qualitative relation. ठीक है? But Okay. who is the dominating factor? अगर charge and size both of them are variable, तो who should be the dominating factor? If you look at here, यहाँ पे देखो दोनों charge are in multiplied condition, right? Hmm. They're in multiplied state, whereas Yes. the size of ions or radius of ions are in added state. They are added, Yes. they are multiplied. तो फिर Hmm. charge का effect ज्यादा होगा. That should be more dominating. Yes, sir. ठीक है? तो we have some Hmm. ionic crystals, you have to compare their lattice. तो क्या वैरी A कर रहा है scatter. इसमें? इसमें देखो पहला वाला मैं कर देता हूँ. इसमें anion is same for all of them. Hmm. ठीक है? क्या चेंज हो रहा है? The cation Cation. is changing. cation का चार्ज सेम है, राइट? Yes. तो मुझे देखना क्या होगा? साइज. Okay. So rubidium size is largest. राइट. सो रुबिडियम प्लस हैज लार्जेस्ट साइज, तो इसका लैटिस एनर्जी सबसे कम होगा. सो इट शुड फॉलो दिस ऑर्डर. Yes, sir. दूसरा वाला बताओ. ये तो पहला वाला हो गया. Hmm. For the next one, +1 -1 +2 -2 +3 -3. तो यहाँ पे एनायन तो सेम है, एनायन इसमें सेम है, सब में सेम है, Cl माइनस. Hmm. ठीक है. चेंज क्या हो रहा है? कैटायन. तो फिर बताओ. तो कैटायन का Hmm. चार्ज चेंज हो रहा है. Yes. So AlCl3 should be greatest. राइट. व्हाट अबाउट NaCl एंड MgO? So NaCl Cl -1 and O is -2. तो यहाँ पे +1 -1 है, यहाँ पे 2 + 2 माइनस है. So that means that MgO is greater than NaCl. Right. So I hope you clear. It is clear how we are comparing the lattice energy. Yes, sir. Right. Yes. Okay. Now can you solve this problem? तो यहाँ पे एक रुबिडियम आयन का एक सॉल्ट है, तो जिसमें we have added some more salt जिसमें ये anions है. ठीक है. Hmm. And then we have heated the mixture. So what should be the possible pair of compounds if I do this? Rubidium plus Okay. का एक sample पे we have added some more salts having these anions and फिर ये mixture को heat कर दिया. So what should be the possible pair of compounds? Fluorine. देखो पॉइंट ही देखो, यहाँ पे रुबिडियम का 3 कंपाउंड्स क्रिस्टल दिख रहा है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. तो कैन यू टेल मी इन तीनों में व्हिच वन शुड बी मोर स्टेबल? Iodide. आयोडाइड कैसे स्टेबल होगा?
तीनों में रुबिडियम प्लस इज द Sorry, कैटायन। तो आयन का साइज chlorine. जितना छोटा होगा या एनायंस का साइज जितना छोटा होगा, द क्रिस्टल लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगा उसमें। तो उस हिसाब से Chlorine. आरबीसीएल शुड बी द वन व्हिच शुड बी फॉर्म्ड बिकॉज इट इज मोर स्टेबल, इसका लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। Okay. यस और नो? Hmm. ठीक है So the चलो। one with, but why do we pick the one with the most stable lattice energy? क्योंकि यहाँ पे जो आयनिक क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है, तो आई विल कंसीडर द वन जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही प्रेफरेंशियली फॉर्म होगा ना। Okay. तो ये तीनों पेयर में जो रुबिडियम का सॉल्ट बना है और क्रिस्टल बना है, उसमें आरबीसीएल सबसे ज्यादा स्टेबल है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट टू फॉर्म प्रेफरेंशियल। Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बॉन्ड हेवर साइकिल विच इज एन एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। ठीक है, अब हेस लॉ भी पता नहीं है, बॉन्ड हेवर साइकिल भी पता नहीं है, तो पता कर लेते हैं। तो यूजुअली दिस इज दिस इज एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स मतलब वायर, जब तुम किसी भी प्रोसेस का एनर्जेटिक्स स्टडी करते हो, मतलब कितना एनर्जी चेंज हो रहा है, कितना हीट एब्जॉर्ब होगा, कितना रिलीज होगा, ये प्रोसेस एनर्जेटिकली पॉसिबल है कि नहीं, ये सारे चीज थर्मोडायनामिक्स में स्टडी होता है। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रोसेस के लिए भी हो सकता है, केमिकल प्रोसेस के लिए भी हो सकता है। तो जब तुम, तो यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू अप्लाई द एनर्जेटिक्स फॉर ए केमिकल प्रोसेस एंड दैट इज व्हाई वी आर स्टडिंग। ठीक है, थोड़ा बहुत इसको पढ़ लेते हैं। तो दिस इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन ए केमिकल प्रोसेस। ठीक है, Okay. तो हेस लॉ क्या होता है? व्हाट डज इट से? द नेट एंथैल्पी चेंज फॉर नाउ अनलेस वी स्टडी थर्मोडायनामिक्स, रीड एंथैल्पी एज एनर्जी। जहां पे एंथैल्पी Okay. है उसको एनर्जी स्टडी, एनर्जी रीड करो। ठीक है, तो the Hmm. net energy change of a chemical reaction or any process always remain the same whether the reaction takes place in one step or through many steps. कोई केमिकल प्रोसेस और एनी प्रोसेस तुम एक सिंगल स्टेप पे परफॉर्म करो और एक मल्टी स्टेप पे परफॉर्म करो। ठीक है, पाथ डिफरेंट हो सकता है, बट ये दोनों पाथ पे तो जो नेट एनर्जी चेंज होता है दैट शुड रिमेन द सेम। इज इट क्लियर? दैट इज द हेस लॉ। Okay. ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट बॉर्न हेवर्ट साइकिल। तो बॉर्न हेवर्ट साइकिल क्या होता है? इसमें व्हाट विल डू, विल फॉर्म ए आयनिक क्रिस्टल। कोई कोई आयनिक कंपाउंड फॉर्म करूंगा एंड 1 ग्राम फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड, मतलब विच इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल। ठीक है, सो यू हैव Hmm. टू फॉर्म एन आयनिक क्रिस्टल। कितना फॉर्म करना है? अगर मुझे एनर्जेटिक स्टडी करना है तो आई हैव टू डिफाइन द क्वांटिटी, राइट? तो डिफाइंड Yes. क्वांटिटी इज 1 मोल, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 1 मोल विल राइट 1 ग्राम फॉर्मूला। सो लेट अस Hmm. इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल ऑफ NaCl। ठीक है, Adit, are you there? Yes, sir. Okay, so let us take NaCl solid 1 gram formula from its constituent elements। तो NaCl का constituent elements क्या होता है? Sodium and chlorine. सोडियम एंड क्लोरीन। एंड ये दोनों जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, इसका नेचुरल स्टेट क्या होता है? सोडियम का नेचुरल स्टेट होता है सॉलिड स्टेट। Solid. ठीक है, और And chlorine क्लोरीन का gas. नेचुरल स्टेट होता है गैसियस मॉलिक्यूलर स्टेट, राइट? Hmm. तो वी हैव टू फॉर्म दिस कंपाउंड आयनिक क्रिस्टल। कितना फॉर्म करना है? 1 ग्राम फॉर्मूला। कहाँ से फॉर्म करना है? फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर नेचुरल स्टेट। तो यहाँ पे सोडियम सॉलिड एंड गैसियस Cl2 मॉलिक्यूल। मुझे 1 ग्राम फॉर्मूला प्रिपेयर करना है, मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 है। अगर इसका कोएफिशिएंट 1 है तो फिर यहाँ पे तुम बैलेंस कर सकते हो इजीली, राइट? Hmm. राइट, तो दिस इज द सिंगल स्टेप प्रोसेस। मुझे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का नेचुरल स्टेट से 1 ग्राम फॉर्मूला ऑफ आयनिक क्रिस्टल बनाना है। तो अगर मैं ये सिंगल स्टेप पे परफॉर्म करूँ, तो लेट से जो एनर्जी चेंज होता है दैट इज डेल एच एफ। मतलब दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब ये कंपाउंड फॉर्म करने के लिए एनर्जी चेंज हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल एच एफ। इज इट क्लियर? Yes. बट द पॉइंट इज, ये थियोरेटिकल स्टेप है। तुम सिंपली सोडियम के ऊपर से क्लोरीन गैस पास कराओगे तो NaCl तो नहीं बनता ऐसा। ठीक है,
तो व्हाट इज द लॉजिकल स्टेप्स? लॉजिकल स्टेप शुड बी द मल्टी स्टेप प्रोसेस. तो हम क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप? तो पहले Na सोडियम सॉलिड को हम सोडियम गैस पे कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. पता है ना, सॉलिड से अगर डायरेक्ट Yes, sir. गैसियस स्टेट में जाता है तो Hmm. यहाँ पे दिस शुड बी एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस. सोडियम सॉलिड से सोडियम गैसियस. तुम्हें क्या है, सॉलिड स्टेट पे Solid मेटल to एटम्स gas, exothermic. एंडोथर्मिक होना चाहिए. सॉलिड स्टेट में मेटल एटम्स आर बॉन्डेड विद ईच अदर, मेटालिक बॉन्ड पे होता है. तो तुम्हें उस बॉन्ड्स को तोड़ना है टू सेपरेट देम, राइट? So, but isn't energy getting released? कैसे एनर्जी रिलीज होगा? सॉलिड से गैस. तुम्हें अगर सॉलिड से गैस पे लाना है तो तोड़ना है ना. सॉलिड स्टेट में वो सोडियम एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, कनेक्टेड बाय मेटालिक बॉन्ड. तो वो बॉन्ड को तोड़ के सेपरेट करना है एटम्स को, तो फिर गैसियस होगा ना. Okay. So this must be a endothermic process. So let us say, तो इसमें जो एनर्जी चेंज हो रहा है that is del H1, you can also call it del H sublimation. मतलब एनर्जी चेंज फॉर द कोरिस्पॉन्डिंग प्रोसेस. तो ये एंडोथर्मिक है, तो दिस इज पॉजिटिव. ठीक है. Hmm. अब मुझे क्या करना है? ये मॉलिक्यूलर क्लोरीन, गैसियस क्लोरीन है, इसको तोड़ के गैसियस एटम पे लाना है, राइट? Yes. तो ये एक मॉलिक्यूलर क्लोरीन का 1 मोल ऑफ बॉन्ड लेते हैं. लेट अस टेक 1 मोल ऑफ दिस बॉन्ड. तो इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगा दैट शुड बी कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. 1 मोल ऑफ बॉन्ड Yes. इसको तोड़ने के लिए. तो अगर तुम 1 मोल बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 2 मोल ऑफ गैसियस क्लोरीन एटम मिलेगा, राइट? Yes. मुझे कितना चाहिए? मुझे चाहिए 1 मोल ऑफ गैसियस क्लोरीन एटम. तो यहाँ पे ऑलरेडी कोएफिशिएंट इज देयर. तो हाफ मोल Cl2 को तोड़ के यू विल गेट 1 मोल ऑफ गैसियस क्लोरीन एटम. तो इसके लिए तुम्हें बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है. तो दिस प्रोसेस शुड बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. I, uh, इफ यू आर Same ब्रेकिंग द as. बॉन्ड तो इट शुड बी, तुम्हें तोड़ना मतलब इट शुड बी एंडोथर्मिक. इफ यू आर ब्रेकिंग समथिंग इट शुड बी एंडोथर्मिक, राइट? Okay. तो डेल एच टू है, दैट इज नथिंग बट हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. यहाँ पे हाफ मोल है, दैट इज व्हाई यू हैव टू मल्टीप्लाई विद हाफ, राइट? दिस इज फॉर वन Okay. मोल. तो डेल एच टू इज हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. अब क्या करना है? गैसियस एटम से तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालना है, Na प्लस गैसियस. तो इसके लिए क्या होगा? डेल एच वन डेल एच टू इज डन. तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो यू नीड टू सप्लाई द आयोनाइजेशन एनर्जी. Yes. And this step is also endothermic. So del H4 is also positive and this is nothing but plus IE, right? Yes. और मुझे क्लोरीन, गैसियस क्लोरीन एटम पे क्या करना है? आई हैव टू ऐड इलेक्ट्रॉन टू गेट Cl माइनस गैस. तो इसके लिए क्या होगा? तो इसमें जो एनर्जी चेंज होगा Minus. दैट शुड बी Oh, एक्सोथर्मिक. X. It should be Yes. exothermic. Electron affinity Hmm. positive, but this is nothing but electron gain enthalpy. That should be minus of electron affinity. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो डेल एच वन, तो चार स्टेप. पहले सॉलिड से गैस, गैस से आयन, सोडियम आयन गैस. यहाँ पे मॉलिक्यूल को तोड़ो गैसियस एटम पे, फिर इलेक्ट्रॉन ऐड करो टू गेट Cl माइनस. और लास्ट में क्या होगा? Na प्लस. ये ऑपोजिट आयंस, ये गैसियस आयंस से तुम्हें सॉलिड क्रिस्टल मिल रहा है. तो ये वाला स्टेप में जो एनर्जी इन्वॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी. आई होप यू नो दैट बाय नाउ. Yes. तो यहाँ पे भी ये भी एक्सोथर्मिक होगा. डेल एच फाइव क्या होगा? माइनस लैटिस एनर्जी, माइनस ऑफ लैटिस एनर्जी, लाइक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसे होता है. Hmm. ठीक है Yes, ना? sir. एंड इफ आई, सो दिस इज द बॉन्ड हावर साइकिल. दिस इज सिंगल स्टेप एंड दिस इज द मल्टी स्टेप. सो दिस बिकम्स अ साइकिल, राइट? Yes. दिस इज द बॉन्ड हावर साइकिल व्हिच इज, और इस पे अगर हेस लॉ अप्लाई करेंगे सो व्हाट डू यू सी? तो डेल एच एफ मस्ट बी इक्वल टू summation of all the energy changes in all these steps. So del H1 plus del H2 plus del H3 plus del H4 plus del H5. Is it clear? Yes, sir. Understood. ठीक है. तो इसमें अगर तुम्हें सारे एनर्जी टर्म्स दिया हुआ है, लेट्स से यू हैव टू फाइंड द लैटिस एनर्जी, बाकी सब दिया हुआ है, तो यूजिंग द हेस लॉ कैन यू फाइंड द लैटिस एनर्जी? Yes. ठीक है. Hmm. अगर मैं, इफ आई आस्क यू टू draw the von Neber cycle for magnesium oxide, this is another ionic crystal, and then if I ask you to apply the Hess law, तो क्या करना है तुम्हें? So you can do it on your own time. ठीक है. तो अभी तो मैं दिखा रहा हूँ. Okay. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेम थिंग. आई हैव टू फॉर्म 1 ग्राम फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर नेचुरल स्टेट. तो मैग्नीशियम सॉलिड है, ये गैसियस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है.
इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट भी बैलेंस इक्वेशन पे फिक्स हो जाता है। और फिर मुझे क्या करना है, मैग्नीशियम सॉलिड को गैस पे कन्वर्ट करना है, फिर मैग्नीशियम 2 प्लस गैसियस पे लेके जाना है। तो यहाँ पे यू हैव टू सप्लाई IE1 प्लस IE2, राइट? Oh, because magnesium. Yes, yes. ठीक है, अब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से गैसियस ऑक्सीजन, यहाँ पे डेल H2 क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन Lp। और फिर यहाँ पे Hmm. 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो इसमें डेल H4 क्या होगा, माइनस ऑफ E1 प्लस E2। इज इट ओके? Yes. एंड Yes, sir. फाइनली ये दोनों आयंस मिलके यहाँ पे डेल H5 क्या होगा, माइनस ऑफ लैटिस एनर्जी। तो ये डेल HF क्या होना चाहिए, दिस शुड बी समेशन ऑफ ऑल ऑफ देम। देखो समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. यू कैन ट्राई द बॉन्ड हाइवर साइकिल फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एट होम एंड मुझे भेज सकते हो, ठीक है, करके। Okay, sir. All So right. for today, I'll finish the class here. You tell me if you have any doubt. No, sir. I understood. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास पे विल कंटिन्यू, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे विद फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स, वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, वी विल चेक ऑल दिस फैक्टर्स। तो नेक्स्ट क्लास तक ये आयनिक कंपाउंड वाला पार्ट खत्म कर देंगे। Okay, sir.